So the effect of pressure and position of equilibrium. To be honest, effect of pressure हमारे पास बड़े easier method से पढ़ाया जाता है O levels में, and I'm going to stick to the same method because it's pretty easy, it's pretty straightforward, and it gives the student the idea how, in case of gases, pressure is effective. Remember, pressure is going to be effective in case of gases, जहाँ पर हम solids या liquids की बात करेंगे, since we cannot bring a huge difference in them in terms of compression, and we cannot actually compress them very easily because they're packed already closely together. So we won't be able to bring a difference on them in terms of pressure. And the same stuff is mentioned in the first three lines. तो इससे पहले कि हम आगे चलें थोड़ी सी बात O levels से in O levels I hope you remember that with examples like these, formation of ammonia, nitrogen and hydrogen used to get react in a reversible reaction where a dynamic equilibrium was established, and it used to produce ammonia like this. Now, we used to explain this entire stuff with terms of number of moles and the number of molecules. Both ways, it's the same thing. Now, I hope you understand this is 1 plus 3 moles, a total of 4 reactant moles, 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen, are reacting to produce 2 moles of the product. When the number of moles were high on the left or reaction side, and a number of moles were low on the right or product hand side, then we used to say that increasing pressure would take the reaction in forward direction. Vice versa, decreasing pressure will take the reaction in reverse direction. And for the whole thing, the vice versa was true. Let's say you have 2SO3, and in some reaction, you're breaking down into 2SO2 plus O2. And then if you are going to talk about the number of moles on the left side, it's a total of 2. However, on right hand side, we have 2 plus 1 is equal to 3. Okay, so that means we have less number of moles on the left and more number of moles on the right. Then increasing pressure in this case is going to take us in reverse direction. And of course, decreasing pressure was supposed to take us in forward direction. This was the second example that we did back in O levels. Now, another example that I can easily take, so that wasn't exactly a part of O levels, but that can always explain what we are, the point I'm trying to make is that hydrogen, when we react with iodine, gaseous forms, of course, can give us 2Hi. Now, since the count over here is 2 and the count over here is 2 as well, increasing or decreasing pressure does not bring anything. Okay, this was the way we did it. This actually works more like a tip, all right? This does not really work as a complete concept over here. So concept भी अभी हम study करेंगे diagram से और इसको भी. But before I move any further, एक छोटी सी बात. In the previous chapter, chapter number 5, states of matter, we have explained few very important things. There was a law called Boyle's law, which explained that for volume of, and I'm talking about gases only. Let's make sure that we are just focusing as for gases. This was equal to this, right? The volume of gases was inversely proportional to pressure. Increasing the pressure decreased the volume, and decreasing. Chapter number is 5, states of matter for this book. Okay, so decreasing the pressure will increase the volume, so it was an inverse effect in this case. Now, again, one more thing that, and of course I'm going to mention it like this, there was another law. We usually don't go with the name of the scientists in years, anything related to history and chemistry or almost all sciences, chemistry, physics, and bio, are all enhanced together. So we definitely go with volume directly proportional to temperature, and this case stands for absolute temperature, temperature in Kelvin. Now, this was true for the ideal gas law. Apart from that, what was mentioned in a single line in a book was volume was directly proportional to the number of moles of gases. More the number of moles of gases, more with the volume. And this is something that actually works like concentration in our case. So what we are going to do is that we're going to pick these two principles out, and we're going to help explain the concept with it. Okay.
So let's move further. Let's clear this all up. I think this diagram easily explains the first concept. If the pressure is greater, and if we exert a bigger pressure, the volume would be less. And this can be easily understood by the volume we have over here with pressure. Let's say we double the pressure. So of course, the volume would be, let's assume it is V by 2. So it's exactly the kind of relationship I have explained before. Okay. So what do we mean from here? Lower pressure means lower concentration. Higher pressure means higher concentration. Actually, what we are doing is that we are squeezing, with the help of pressure, more gas molecules into a smaller area or region, and hence a higher concentration can be considered because we'll have more number of molecules on a smaller area, which of course means higher concentration. So that's how it works. So in the cases of gases, pressure actually can change the concentration for us. Now, the pressure of a gas is caused by the molecules hitting the walls of a container. Each molecule in a mixture of gases contributes towards total pressure. So, at constant temperature, more gas molecules there are in a given volume, the higher the pressure. Since we were actually, don't forget, I just said so, we were squeezing more number of molecules into a smaller region or area, and hence we're using the word given volume over here, higher is the pressure. So if you're going with something like this, there are two moles of a gas on the left and one on the right. When the pressure is increased at constant temperature, what is going to happen? The molecules are closer together because the pressure has increased. The position of equilibrium shifts to minimize this increase. It shift in the direction of fewer gas molecules, right? In the direction that opposes the change in increase in pressure. This is related to Le Chatelier's principle, the same principle we have studied back in O levels, and the same one we are doing right now. So more product Z is formed from X and Y until equilibrium is reestablished. Now, this is kind of like the same example that I considered earlier. I was considering 4 giving us 2 moles. They are right now considering 2 giving us 1 mole. So it means the same thing. If the number of moles are higher for the reactant side, higher than the product side, so of course that's what's going to happen. And this explains it pretty well. Okay. Now in order to, for your better imagination, have actually considered diagrams, and they are counting the number of molecules so that you can understand what's happening. All right. So 13 molecules contributing to pressure. Pressure is increased. More molecules of V are formed, reducing the total number of molecules from 13 to 11. And this is actually a very good idea of understanding that how the number of molecules are reduced when the reactants are converted into products, when Le Chatelier principle actually starts happening. So he's trying to explain that when the reaction is going to move into forward direction, what would happen? Some of these molecules will be converted into these. So the total number of molecules on both the side or on the entire system is going to decrease, hence decreasing the pressure. So the concept we require over here is that actually, yeah, we do calculate them separately, the moles of the reactants and moles of the product, for our own understanding in solving chemical equations. But what you need to understand over there, in the actual term of what's happening inside the utensil, wherever the whole reaction is being carried out, is that all those particles, be it reactants, be it product, are present in the same reaction mixture. So if we're talking about N2 and we're talking about H2 and we're talking about NH3 maybe, so that doesn't exactly discusses the same equation. I hope you get an idea that both N2 molecules, H2 molecules, NH3 molecules, all three of them are present in the reaction mixture. So when we actually increase the pressure and we discuss the effect afterwards, it's actually that the reduction in total number of molecules happens. That's how we are capable of discussing it in such a way. That's how increasing the pressure takes the reaction in forward direction. And as the Le Chatelier's principle, the whole thing, I mean,
the opposite effect which it was supposed to give. Don't forget ली शर्टली प्रिंसिपल के लिए मैंने बार बार एक ही बात की है. ली शर्टली प्रिंसिपल is more like a naughty child. ठीक है, he always does the opposite of what we ask him for. तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एज पर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो ली शर्टली प्रिंसिपल में पूरा सिस्टम इस तरह से बिहेव कर रहा होता है कि वो किसी तरह से प्रेशर को डिक्रीज कर सके. नॉट एग्जैक्टली मूविंग टू द लेफ्ट साइड बट डिक्रीज ऑफ प्रेशर. ठीक, तो वही चीज यहाँ पर हमारे सामने एक्चुअली हो रही है. और प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे. कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कम कोलिजन्स. कम कोलिजन्स का मतलब है कम प्रेशर. दिस इज द चेंज ही इज टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है. ऑफ कोर्स ये बात आनी होनी चाहिए और ये बात हमने एज अ टिप ओ लेवल में सिखा दी होती है, लेकिन यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और एक इमेजिनेशन बिल्ट होनी चाहिए कि जब हम ये करेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या. क्यों प्रेशर कम हो जाएगा? प्रेशर इसलिए कम हो जाएगा कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट या स्पेसिफिक मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, व्हाटएवर you'd like to discuss, मोल भी अमाउंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अमाउंट है. ठीक है, तो वो कम हो जाएंगे बिकॉज दे आर रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. और चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स एज अ होल कम हो जाते हैं, हमारे पास वहां पर प्रेशर भी कम होता है क्योंकि कोलिजन्स कम होने शुरू हो जाएंगे. ऑफ कोर्स 13 पार्टिकल्स ज्यादा कोलिजन्स दे रहे होंगे, 11 पार्टिकल्स 10 9 8 कोई भी नंबर अगर आप पिक करना चाहें, वो ऑफ कोर्स लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स दे रहे होंगे. तो मूविंग ऑन, हम एक एग्जाम्पल रिएक्शन कंसिडर करते हैं. द सेम फॉर द कॉन्टेक्ट प्रोसेस वी हैव बीन कंसिडरिंग बैक इन IGCSE अगेन एंड अगेन. ठीक है, आपके पास 3 मोल्स ऑफ गैस ऑन द लेफ्ट हैं, 2 ऑन द राइट हैं. होगा क्या जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे? ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्लोजर टुगेदर होंगे जब प्रेशर हाई होगा. दी शर्टली प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन शिफ्ट होना चाहिए इस डायरेक्शन में कि रिड्यूस करे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. तो प्रेशर शिफ्ट कर जाता है, एक पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाती है राइट पे. ज्यादा SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 फॉर्म कर लेती है. रिमेंबर, SO3 पर की साइड पर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर आपके पास ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स कम है. तो ऑफ कोर्स जैसे ही वो हमने चूंकि प्रेशर बढ़ाया था तो उसने उसे डिक्रीज करने के लिए काउंटर एक्ट कर दिया. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. So it moved in the forward direction or position of equilibrium shifted towards right. ठीक है, what happens when we decrease the pressure? Now, this is the exactly opposite case. So, of course, the opposite is going to happen. That's why I keep saying vice versa is true, vice versa is true. So, molecules further apart होंगे क्योंकि pressure low होगा. According to the Shettier principle, reaction ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएं. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर आई हैव बीन यूजिंग द सेम थिंग. और अगर हम पीछे जाएं इक्वेशन पर तो आई हैव बीन सेइंग कि ये टोटल 2 है और ये टोटल 3 है. तो ऑफ कोर्स ये 2 से 3 की डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा. तो द इक्विलिब्रियम शुड शिफ्ट टू लेफ्ट in order for the whole thing to complete. तो SO2 और O2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, डिकम्पोजिशन होती है SO3 की, इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेफ्ट पर शिफ्ट करती है, तो हमारे पास ये चेंज आ जाता है. अब हमने नोट क्या करना है? A few important things that we need to keep in mind. If there are equal number of molecules of gas on each side of the equation, the position of equilibrium is not affected by a change in pressure. I've already considered an example of H2 plus I2 giving us 2HI for this specific example. Nothing happens. If we try to change the pressure, okay, both sides have the same effect. So actually, nothing is going to happen as a change. देखिए, एक बात याद रखिएगा, टोटल सिस्टम डायनामिक है, हमें चेंज नहीं फील होगा. दो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अंदर होते रहेंगे. कीप द स्टफ इन माइंड. नथिंग लाइक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और समथिंग एट रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऐसा नहीं होगा. अगर आप ये कंसिडर कर लें कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना छोड़ देंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिकम्पोज करना छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, प्रोडक्ट्स हमेशा आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में हमेशा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते रहते हैं. इट्स जस्ट दैट कि हम इक्विलिब्रियम कहते ही ऐसी पोजीशन को हैं जहां पे ये रेट बराबर हो जाता है. क्योंकि रेट बराबर हो जाता है तो एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर लाइक अस वर एक्चुअली ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट स्पेसिफिक रिएक्शन. हमारे लिए उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता, though there is a continuous change inside. So reaction में हमारे पास gases और liquids और solids
ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं जो काउंट करते हैं, जो प्रेशर से इफेक्ट होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा जो रिवर्सिबल हो, जिसमें इक्विलिब्रियम हो, और लेट्स से कि आपके पास लेट्स से A plus B reacts with C plus D, and out of which this is a solid, this is a gas reacting together, giving us a different gas and a liquid. I'm just assuming. तो आप जब प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे किसी भी ऐसे सिनेरियो में, तो याद रखिए चेंज सिर्फ इस पर और इस पर आएगा। Why? Because pressure can only affect gases. Pressure liquids या solids को affect नहीं करता, and this is something we started off with for today's lesson. ठीक है? तो प्रेशर सिर्फ इन दोनों को अफेक्ट कर रहा होगा और आप इन दोनों की ही तरतीब से देखेंगे, which means what matters is the number of moles of B and number of moles of C. काउंटिंग इनकी आएगी, ना कि टोटल की। ये गलती नहीं करनी। I have been totaling, yeah, that is right. I have been totaling on the left side and on the right side, but again, in a multiple case scenario जिसमें आपके पास liquid का केस भी है, solid भी है, gas भी है, या aqueous भी है, ऐसा कोई भी केस होगा, only gas is affected by the pressure. तो आप number of moles भी gases से consider करेंगे on the left and on the right. ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी, which one has the higher side, which one has the lower, or either both of them has the same numbers. तो आप वही rules apply करेंगे। And trust me, we have studied all three cases that are possible over here, higher to lower, lower to higher, and equal. तो आपके पास उन्हीं में से कोई ना कोई केस फॉर्म हो जाएगा। okay? तो मूविंग ऑन, चेंज इन प्रेशर, हमारे पास प्रेशर जब इंक्रीज होता है, हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक अमोनिया वाली एग्जांपल है, उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंक्रीज करने से वो प्रोडक्ट साइड पे या राइट की तरफ मूव करता है, और डिक्रीज करने से वो रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो उन्होंने वही चीज दी हुई है। वी हैव अ डिफरेंट इक्वेशन हियर। आपके पास एक N2O4 है, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और कन्वर्ट हो रहा है टू NO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब इसे नोटिस करें, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, तुम्हारे पास लोअर है ऑन द रिएक्टेंट साइड, हायर ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो वो इसका ऑपोजिट होगा। प्रेशर डिक्रीज होने में ये प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएगा और NO2 फॉर्म होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने में एक्चुअली ये रिवर्स या रिएक्टेंट साइड पे जाएगा और मोर N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक, तो आपके पास ये ऑपोजिट केसेस यहाँ पे भी डिस्कस हो जाते हैं। आई हैव डिस्कस्ड सिमिलर वंस बिफोर, so I hope you understand the whole point. Okay, any questions from the pressure part before we move to the next? No, sir. All right, let's move on. Effect of Sir, temperature. I have a question. Can I ask, please? Sure, go ahead. Sir, could you explain Lee Chartier's principle again? If that's the name, I guess. या लीशटलियर्स प्रिंसिपल, और वो वही है जो हमने ओ लेवल्स में स्टडी किया था बेटा। लीशटलियर प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है कि आपके पास जब भी कोई सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, हम जब भी उस इक्विलिब्रियम में कोई भी ऐसी चीज चेंज करते हैं जो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता हो, और कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, और सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए लाइट की इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, वेल वी आर नॉट गोना डिस्कस फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। हम कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट, इन चार के साथ स्टिक करेंगे। तो आपके पास क्या होता है? आपके पास जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, आपके पास नया इक्विलिब्रियम अटेन होना होता है या रीस्टैब्लिश होना होता है। और लिशर्टियर प्रिंसिपल ये कहता है कि सिस्टम हमेशा ऐसे बिहेव करता है कि जो भी चेंज आप करेंगे, उस चेंज को नलिफाई करने के लिए या अपोज करने के लिए जितनी मैक्सिमम कोशिश उसके लिए पॉसिबल होती है वो करता है। मसलन आपने इंक्रीज किया है प्रेशर, तो सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा, या वो राइट पे मूव करेगा या वो लेफ्ट पे मूव करेगा, क्योंकि सिस्टम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या रिवर्स। सिस्टम के पास कोई तीसरी ऑप्शन तो होती नहीं। ठीक है, तो वो इन फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में से वो वाली पिक करेगा जिससे वो प्रेशर को डिक्रीज करके उस इफेक्ट को बराबर कर सके। वो उसके ऑपोजिट कर रहा होगा। लेट्स से हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम ने ऐसे बिहेव करना है कि वो ऑटोमेटिकली पूरी कोशिश करेगा उसी इफेक्ट को कैंसिल या नलिफाई करने के लिए, तो वो फॉरवर्ड या रिवर्स में से उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन से टेम्परेचर कम हो सकता है।
ठीक है? This Basically, it is brings it back to the original, right? नो एक्चुअली ब्रिंग्स इट बैक टू ओरिजिनल की बात नहीं है, चेंज को नलिफाई करने की कोशिश है, क्योंकि ओरिजिनल हो नहीं पाता। चेंज से बाद मर्तबा ना हमारे पास चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे उसे ला नहीं सकते। अगर आपका ओरिजिनल से मतलब है कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स रेट को दोबारा बराबर करने की कोशिश करता है, दैट इज करेक्ट। अगर आपके पास ओरिजिनल से मतलब है कि आपके सेट ऑफ कंडीशन फिर दोबारा मेंटेन हो जाए, जितना टेम्परेचर, जितना प्रेशर, जितनी कॉन्सेंट्रेशन था, दैट नॉट एग्जैक्टली माइट बी ट्रू। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर या टेम्परेचर तो शायद आप दोबारा अपनी वैल्यूज पे ले आएं, हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन आप इंटरप्ट कर बैठें, ठीक है, और वाइस वर्सा। Okay, okay. सही। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि समटाइम्स हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वापस इसी कंडीशन को जाने के दो मतलब लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे होते हैं कि भाई आप फॉरवर्ड और रिवर्स रेट को दोबारा बराबर कर लेंगे, वो ठीक सोच रहे होते हैं, वो गलत नहीं सोच रहे होते हैं। Yes, sir, I was लेकिन talking in this sense. Yeah. हाँ, बिल्कुल। लेकिन चूँकि इस सेंटेंस की मल्टीपल सेंसेस मैं पास्ट में फेस कर चुका हूँ, सो आई डिस्कस ऑल द सेंसेस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड सेंस अपार्ट फ्रॉम दीज़ टू दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, यू कैन ऑलवेज आंसर इट। सो व्हाटएवर यू हैव इन माइंड, यू कैन डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दैट, ठीक है? ताकि उसको वैसे ही क्लियर किया जा सके। ओके, Okay, मूविंग sir. ऑन टू मूविंग ऑन टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में हमारे पास सिनेरियो प्रेशर या कंसंट्रेशन की तरह सिंपल नहीं होता। प्रेशर या कंसंट्रेशन में तो ये था ना कि इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया, बस आपके पास दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन से सब चेंज हो जाता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट हीट। हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम एक तरह से डिफाइन भी नहीं कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा है ए लेवल्स में और हमने पीछे आईजीसीएसई में भी पढ़ा था कि जो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू होती है, एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, एक्सोथर्मिक की रिप्रेजेंट होती है नेगेटिव से और एंडोथर्मिक की रिप्रेजेंट होती है पॉजिटिव से, ठीक है? और अगर ये डेल्टा एच को कंसिडर ना भी किया जाए तो भी हम जानते हैं एक्सो एंड एंडो आर एक्चुअली ऑपोजिट टू वन अनदर। एक्सो में आपके पास सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, और एंडो में वही सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इन दोनों के लिए टेम्परेचर का चेंज डिफरेंटली बिहेव करता है। So what we are going to do is that we're going to discuss two examples. हम एक्सोथर्मिक के लिए अलहदा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हम एंडोथर्मिक के लिए अलहदा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, तो यू विल सी कि हमारे पास बुक में भी उसे सेपरेटली एक्सप्लेन किया होगा। दे आर स्टार्टिंग ऑफ विद एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले टेम्परेचर का इफेक्ट उसके लिए हम डिस्कस करेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड देन लेटर ऑन वी आर गोना मूव टू एन एक्सोथर्मिक एग्जांपल एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके, so as I've explained, we're going to start with an endothermic reaction. Of course, endothermic reaction के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ये सिस्टम जो होता है सराउंडिंग से हीट एनर्जी या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके रिएक्शन प्रोसीड करता है। The example we have is actually the opposite of what I have been discussing or putting as an example earlier. Hydrogen iodide is decomposing back into hydrogen and iodine. ठीक है? तो आपके पास क्या होता है, अब उसमें बड़े अच्छे तरीके से उसके हमारी वैल्यूज दी हुई हैं। ओके, नोटिस इसने हमारे लिए एक टेबल बनाया हुआ है। टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 230, 430 एंड 490। इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एच आई की भी कोट की हुई है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन H2 की या I2 की, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स H2 और I2 के सेम रहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो ऑफ कोर्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास सेम रहेंगी। ये एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं, ठीक है, जो परफॉर्म किया गया है इस प्रॉपरली इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए। नाउ इफ यू लुक एट दीज रिजल्ट, व्हाट डू यू सी? यू विल सी कि आपके पास एच आई की कॉन्सेंट्रेशन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई फॉर इक्विलिब्रियम इज डिक्रीजिंग। वाइस वर्सा, आपके पास इक्विलिब्रियम concentration of H2 और I2 is increasing as the temperature changes। ये कोई बहुत रेगुलर टेम्परेचर चेंज नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है। 25 से शुरू किया, एकदम 230 हो गया, फिर 430 हो गया, फिर 490 हो गया, बट स्टिल इट इज गुड इनफ टू गिव यू एन आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एच आई की कम होती चली जाती है और H2 या I2 की बढ़ती जाती है ना। व्हाट आर यू सपोज टू गेट फ्रॉम इट?
I hope you understand the simplest point over here, that higher the temperature, more of the HI is going to decompose, hence lesser concentration of HI, and more it is going to form hydrogen and iodine, hence higher concentration at equilibrium for hydrogen and iodine. आई होप इस टेबल से भी आप भी यही बात डिड्यूस कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ वी डिड्यूस द सेम थिंग देन वी कैन सिंपली एक्सप्लेन अ कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट। ठीक है, टेबल 8.3 से टेम्परेचर चेंजेस देखने के बाद, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने के बाद पोजीशन इक्विलिब्रियम की शिफ्ट होती है टुवर्ड्स राइट, हम ली शटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 490 की वैल्यूज इस वक्त नजर भी आ रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एनर्जी सराउंडिंग्स की इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगा कि वो अपोज करे इस एनर्जी इंक्रीज को। रिएक्शन जाता है उस डायरेक्शन में जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो रिएक्शन जो है ना वो एनर्जी की अमाउंट को जो इंक्रीज हुई है हमारे इंक्रीज करने पे उसको अपोज कर सके। वो क्या है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड या टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और इन फेवर ऑफ द concentration, increasing concentration of hydrogen and iodine उसमें होता है। Now you can understand the reaction is being answered in multiple perceptions, और मैं भी multiple words use कर रहा हूँ। Any of those terms is fine. Position of equilibrium shifts to right. Position of equilibrium favors the product side. Position of equilibrium produces more products. Specifically आप उनके नाम लेकर लिख सकते हैं। All of these answers can be taken as correct. ठीक है, मोस्टली आपको मार्किंग स्कीम में इन पास्ट 5 years ये वाला आंसर या ये वाली तरतीब बहुत ज्यादा मिलेगी, but it doesn't mean you can't write any other words. Of course, any similar words to the same explanation will be considered as correct. ठीक है, तो आप चाहे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करते हैं राइट पे, चाहे फेवर करते हैं प्रोडक्ट साइड को, चाहे मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन दैट केस, ठीक है, सारी चीज ठीक हो सकती है एज पर द सिनेरियो। ओके, बट इट्स बेटर टू pick the words right out of the book as your answers instead of writing them in your own words. It's better to stick with chemistry's terminology. ठीक है, उसके मार्क्स हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। मूविंग ऑन, if an increase of temperature favors an endothermic reaction, decrease of temperature favor करता होगा exothermic reaction को। तो बहुत इजी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंस्टेड के वो दोनों सिनेरियोज लेता एंडो के और दोनों लेता एक्सो के, वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, उसने आपस में उसको लिंक कर दिया एज अपोजिंग चेंजेस से। ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक फेवर होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर से, तो एक्सोथर्मिक फेवर होता होगा डिक्रीज इन टेम्परेचर से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। शटके प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जो अपोज करे डिक्रीज इन एनर्जी। तो रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी। तो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मोर प्रोडक्ट बनेगा, मोर रिलीज इन एनर्जी होगी, और ऑफ कोर्स जो डिक्रीज इन एनर्जी का चेंज था वो अपोज हो जाएगा। अब इसको सेपरेटली करने की जरूरत क्यों नहीं है? इसको सेपरेटली करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि लेट्स सपोज अगर वो कह रहा है, हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, और उससे इसने ये प्रोड्यूस किया और उसने कहा कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ लेट मी टेल यू, जब इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक लिखा जा रहा था तो हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। याद रखिए हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का अगर फॉरवर्ड एंडो हो तो रिवर्स एक्सो होता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली एक अगर फेवर हो रहा होगा तो दूसरा अगेंस्ट होगा, या दूसरा फेवर हो रहा होगा तो पहले के अगेंस्ट आ रहा होगा। तो इसमें से कोई एक सिनेरियो दूसरे का ऑपोजिट एट द सेम टाइम चल रहा होगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्चुअली अगर एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक हो जाती है। इसको कैसे हमने समझना है? डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिमेंबर वो पॉजिटिव फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, ऑटोमेटिकली रिवर्स होगा, नेगेटिव या एक्स हो जाएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होती तो इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सो या नेगेटिव होता,
ऑटोमेटिकली रिवर्स रिएक्शन एंडो या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस मीन्स। तो आपको दो सेपरेट एग्जांपल्स लेकर समझाने की बजाय एक ही एग्जांपल का रिवर्स और फॉरवर्ड या रिवर्स आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेल, उसने फिर भी दो सेपरेट एग्जांपल्स दिए नीचे टेबल में। लेट्स गो विद दोस एग्जांपल्स, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो वो क्लियर हो जाए। टेम्परेचर चेंज आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो कि 2HI वाला है, उसमें क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक तो एक्चुअली प्रोडक्ट साइड के लिए फेवर होता है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करती है टुवर्ड्स राइट और द प्रोडक्ट साइड, वो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। वाइस वर्सा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो रिवर्स जाएगा और रिएक्शन साइड पे मूव कर जाएगा। Moving on with an exothermic example. Now, I hope you remember back from IGCSE or O level that this was considered as an exothermic reaction. इसकी negative value हुआ करती थी, ठीक है? बहरहाल, if not from these, आपको ये चीज पता होगी कि हमारे पास इस केस में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करती है टुवर्ड्स रिएक्टेंट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, दिस एंड दिस वुड बी ऑपोजिट टू वन अनदर। व्हाई? बिकॉज एंड और एक्सो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सो वुड बी दिस एंड दिस। ठीक है, अगर कुछ ठीक होता है और परटेनिंग होता है टू द सेम डिटेल तो वो हम यूं डायगोनल्स में डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर ये टुवर्ड्स रिएक्टेंट जा रहा है इस साइड पर तो इस डायगोनल में ये टुवर्ड्स रिएक्टेंट जा रहा होगा। अगर ये टुवर्ड्स प्रोडक्ट जा रहा है इस साइड पर तो ये टुवर्ड्स जा रहा होगा प्रोडक्ट इस साइड पर। ठीक है, well आप ऑपोजिटली अंडरस्टैंड कर लें या डायगोनल बेस पे अंडरस्टैंड कर लें रिलेशनशिप। यूजुअली एंडो और एक्सो का इकट्ठा रिलेशनशिप नहीं डिस्कस होता, ठीक है, पेपर्स में। इफ यू गोना पिक पास्ट 10 years पेपर, 8 years, 12 years, यू गोना नोटिस कि एक टाइम में एक सिनेरियो ही डिस्कस हो रहा होता है, उसी की रीजन आ रही होती है। ठीक है, कम कम होता है कि आपके पास एक टाइम में 2 या 3 सिनेरियोज इकट्ठे डिस्कस हो और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की रीजनिंग इकट्ठी हो जाए। ठीक है, this finishes up temperature. Any questions from temperature before we move further? No. All right. Okay, catalyst. We should have explained it in a good way back in IGCSE, लेकिन IGCSE या O levels में तो बहुत थोड़ा सा टच किया होता है। वहां पर 3-4 लाइन्स होती हैं, तो हमारे पास भी यहाँ पर 3-4 लाइन्स दी हुई होती हैं। तो हम उसी तरह से एक्सप्लेन कर दें। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट रिड्यूस कर देते हैं टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम। इनका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता जब वो पहुंच चुका होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना ये फॉरवर्ड को सपोर्ट करते हैं उतना ये रिवर्स को भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये दोनों साइड्स को बराबर सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जस्ट something that would happen as an effect would be less time is taken to reach equilibrium, which is actually pretty important for industrial chemistry. ठीक है, industrial chemistry के हिसाब से आपने अंडरस्टैंड किया होगा that yeah we do are greedy for the profits और हम पैसे के पीछे बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। बट लेट मी टेल यू, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट कमोडिटी। अगर टाइम ज़ाया हो जाए, टाइम वापस नहीं आता, पैसे ज़ाया हो जाए तो आपके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं पैसे दोबारा अर्न करने के लिए। टाइम ज़ाया हो जाए कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो एक्चुअली दे कंसिडर टाइम अ मोर इम्पोर्टेंट कमोडिटी। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो उसी टाइम को रिड्यूस करते हैं हमारे वर्क के लिए। तो ऑफ कोर्स इफ यू कैन टेक लेस टाइम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, in the meantime everyone is making the product, you will be able to start selling that product and earn profit on it. Industrial chemistry इसी तरह से चलती है। ठीक है, the sooner you're going to form products, the sooner you'll be able to sell them and take profits out of them। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। This is because they increase the rate of forward and reverse reaction equally. ये बात मैं नीचे explain कर चुका हूँ, so that's how you know that catalysts actually do not affect the position of equilibrium. तो किसी एक side की position को affect नहीं कर सकते। Since position of equilibrium is either favored for the right or for the left, catalyst actually दोनों को बराबर favor कर रहा होता, तो either वाला concept इस पर apply नहीं हो सकता। ठीक, अब हमारे पास याद रखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी, आगे चल के हम डिस्क्राइब करेंगे केसी केपी क्या है, ये भी हमने अभी बताने हैं। इनकी वैल्यू सेम रहती है अगर हम
चेंज करें, कंसंट्रेशन और प्रेशर या कैटलिस्ट ऐड करें। लेकिन केसी और केपी तब जरूर इफेक्ट होंगे जब टेम्परेचर इफेक्ट होगा। तो चार फैक्टर्स जो भी हम डिस्कस कर रहे थे डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए, और हम बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कि वो इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, तो उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स थे जो आपके पास पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो ना अफेक्ट करते थे, फेवरिंग ईदर साइड, एक साइड को फेवर करते हैं टाइम। कैटलिस्ट क्योंकि हमारे पास एक साइड को नहीं दोनों साइडों को फेवर कर रहा था, तो कैटलिस्ट हमारे पास कुछ इफेक्ट नहीं करता। केसी या केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम आगे चल के डिफाइन करने वाले हैं, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट इसने पहले बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट इन्हें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर अलबत्ता इसे अफेक्ट कर सकता होगा। Now this is a very important point to remember। आगे चल के मैं इसे फर्दर ये वाले डॉट कनेक्ट करने वाला हूँ, confusion है वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये याद रखना है because this point is like under manipulation for Cambridge by many decades, not just years, decades, ठीक है। तो ये अभी तक बराबर जो है ना यूज हो रहा होता है, खासतौर पे पेपर 1 के लिए तो बहुत अच्छा एक एमसीक्यू बन सकता है इसके लिए। ओके, so equilibrium expression and equilibrium constant, the very thing I was talking about कि हमने नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करनी है कि इसी होता क्या है, कि हमने यहाँ बताना है, तो उसकी बात हो रही है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है कि जितना कुछ अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है एक थ्योरेटिकल फॉर्म में, we're going to give all of this a shape in quantitative form। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ये हैं कि हम उसे क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना शुरू कर दें, इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को, so much so that we can give them in the form of numbers and values, which is discussable and comparable from one value to another value। That's why expressions in the constant। Okay, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होगा, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाकायदा, केसी होता क्या है वो सारा कुछ, बट अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हम पहले देते रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए था। कोई भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर सब्सटेंस लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉम्प्लेक्स साइंस की जो हम A2 में पढ़ेंगे, और जो ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये डिफरेंट हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना है। वेल वो A2 की चीज है, A2 में ही देखी जाएगी, ठीक है। जब आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस लिख रहे होते हैं तो एक्स वाई मीन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, हम बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं पुट करते, टू ब्रैकेट्स टुगेदर ऑटोमेटिकली मीन मल्टीप्लिकेशन। If we are being very accurate, we should include the subscript eqm after the square bracket, but this is usually omitted, ठीक है। हम ये नहीं बताते कि हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं हर मर्तबा। इसको यूं लिखने का मतलब है, इसका मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डेसिमीटर क्यूब, और इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन ये हम हर मर्तबा नहीं लिखते होंगे। इसका ऑटोमेटिक मतलब इस बात का ये हुआ कि हम इक्विलिब्रियम की ही कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल अलोंग। हम ये काम इस तरह से करते आए हैं बगैर लिखे। तो वो ये बता रहा है कि हमें यूं लिखना तो चाहिए एक्यूरेसी के लिए, लेकिन अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हर कोई यही अंडरस्टैंड करेगा। आप भी एग्जामिनर क्वेश्चन से यही अंडरस्टैंड करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। until unless he needs to change it, वो सेंटेंस में क्लियरली मेंशन कर देगा ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल में थी, ये कॉन्सेंट्रेशन फाइनल थी, ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम थी। if he needs to talk any other about any other scenario except for equilibrium, he is going to clearly mention it in the question। Remember, ये लेवल में tricky questions जरूर होते हैं, blind नहीं होते। There is always a hint, there is always an explanation of the scenario before they ask you the question, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस पर आते हैं। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ एक क्लोज ट्यूब में, ठीक है, क्लोज ट्यूब का मतलब है हम क्लोज सिस्टम ले रहे हैं ताकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। कोई भी गैस अगर सिस्टम से निकल जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, दैट्स व्हाई क्लोज ट्यूब। 500 केल्विन पे तो हमारे पास ये एक प्रॉपर इक्वेशन बनती है। इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस H2 I2 या HI के दरमियान हमने रिलेशनशिप शो करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लास्ट कॉलम में रेफर करती हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब। आगे चल के हमारे पास एक टेबल आएगा, उसके लिए ये बात हो रही है, ठीक है, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट ये चीज, ठीक है, वो आगे देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मोल पर डेसिमीटर क्यूब में जो भी सब्सटेंस की बात हो रही है मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। हम सेवरल ट्यूब सेटअप करते हैं
डिफरेंट स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन से काम करते हैं। कंटेंट्स हर ट्यूब के अलाव किए जाते हैं कि वो आराम से इक्विलिब्रियम पहुंच जाए 500 केल्विन पे। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्विलिब्रियम पर डिटरमिन करते हैं, उससे हमने टेबल बनाया हुआ। लास्ट कॉलम इन टेबल पॉइंट 5 शो करता है नंबर वी गेट बाय अरेंजिंग द concentrations of H2, I2 and HI in a particular way. We get this expression by taking the square of concentration of hydrogen iodide, dividing it by the concentrations of this. तो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ द डेटा इन टेबल 8.5 हमारे पास क्या हो रहा होता है, इसको देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन H2 की इक्विलिब्रियम में, कॉन्सेंट्रेशन I2 की इक्विलिब्रियम पर, कॉन्सेंट्रेशन HI की इक्विलिब्रियम पर, और हमारे पास वो एक सेटअप जो हम इक्वेशन से बना रहे हैं। ठीक है, ये टेबल है एक्चुअली। तो इस टेबल के हिसाब से उसने कुछ डिस्कशन की हुई है, डिस्कशन को देख लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ये फर्स्ट लाइन से उसने पिक किया लिटरली ये सारा कुछ, और उसने इस तरह से लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वैल्यू आती है अबाउट 160 की, जो भी स्टार्टिंग कंडीशंस हो H2, I2 या HI की। इस कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बुलाते हैं। ठीक है, आप नोटिस करें कि यहाँ पर आंसर्स 160 के आसपास आ रहे हैं विद अ वेरी स्लाइट चेंज इन ऑल फोर। और नोटिस करें कि हमारे पास ऑल फोर में स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक, लेट्स चेक इट। 0.68 और 0.68 इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है H2 या I2 की, 0.5 या 0.5 है, 1.1 या 2 है, 2.5 या 0.65 है। आप नोटिस करेंगे कि इस सारे में उसने कुछ भी एक तरह से नहीं लिखा। पहले दोनों में H2I2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मैं बाकायदा से पॉन्डर कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको हर मर्तबा टेबल को क्रिटिकली एनालाइज करना आ जाए, सो दैट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू एवरी टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम में H2 और I2 की वैल्यूज सेम है, सेकंड टाइम में एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज है, बट अगेन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन H2 और I2 की सेम है। थर्ड में एक ऐसा केस है जिसमें H2 की वैल्यू I2 से लेस है। फोर्थ में केस ऑपोजिट है, H2 की वैल्यू ज्यादा है, I2 की वैल्यू लेस है। ठीक है, सारे तरह के केसेस जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि सेम वैल्यू हो, सेम वैल्यू किसी और सेट ऑफ वैल्यूज से हो जाए, एक ज्यादा हो दूसरे से या दूसरा ज्यादा हो पहले से, हर तरह की उसने स्टार्टिंग पॉसिबिलिटी, चारों की चार पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर दी हैं। टेक अ लुक, उसके पास आंसर फिर भी कांस्टेंट 160 के आसपास आ रहे हैं। तो देयर इज अ कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं, द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। और उस कांस्टेंट को हम केसी कहते हैं। सबस्क्रिप्ट रेफर करता है कॉन्सेंट्रेशन जो कि कैलकुलेशन में यूज की गई हैं। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट कहाँ से आ रहा होता है, हम इसे कैसे डिराइव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आगे इक्वेशन है। एक सिंपल रिलेशनशिप जो लिंक करता है केसी को इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइकोमेट्रिक इक्वेशन में, इसे हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं। हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे बनता है और उससे कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो सारा आगे देख लें। बट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर वी गो विद इट। याद रखें, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की टॉप पर जाती है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बॉटम पर जाती हैं। कैसे, वो हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड जो कि बैलेंस इक्वेशन में आते हैं, उन्हें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर हम नहीं डालते। ठीक है, कोई भी एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है सी और डी, जबकि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर ए के साथ लगाया है वो m है, बी वाला n है, सी वाला p है, डी वाला q है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स या बैलेंसिंग नंबर्स हैं। केसी किस तरह से आया, केसी हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह से आता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन में यूं लिखे जाते हैं और अपने पावर्स पे रेज किए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा रिएक्टेंट्स अपनी कॉन्सेंट्रेशन में लिखे जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी पावर्स पर रेस किए जाते हैं। ये वो बताने की कोशिश कर रहा था, केसी इज एवरी टाइम गोइंग टू बी द सेम। व्हाट आर यू डूइंग, आप प्रोडक्ट को ऊपर लिख रहे हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब ऊपर लिख रहे हैं इसी तरतीब से इन देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और उनको उस नंबर पे रेस करें जिस नंबर पे आपने उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, और नीचे आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ले रहे हैं,
मोल पर डेसिमीटर क्यूब में ले रहे हैं और उन्हें भी उन्हीं नंबर्स पर रेज कर रहे हैं। ये कैसे निकालने का तरीका, ये कैसे निकलता है? इट्स अ वन पेज थिंग, बट हम वो वन पेज यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है? तो बास टीचर्स वो करवा भी देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे, सिर्फ इतना याद रख लेंगे कि ये ऊपर है और ये नीचे है, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज एवरी टाइम यू गोना वाइंड अप विद द सेम थिंग, ठीक? वही चीज इसने यहाँ पर एक पूरे एक्सप्लेनेशन में बताई हुई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से हैं, रिएक्टेंट किस तरह से हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमने ली हुई है और उस पावर पर रेज की हुई है, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है। इसे बाकायदा किसी इक्वेशन के लिए लिखना इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसका एक न्यूमेरिकल आंसर निकालना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगर हमारे पास इक्वेशन थी, व्हाट हैव वी यूजिंग, हाँ ये H2I2 gives us 2HI, ठीक है? तो अगर हमारे पास यूं है कि हम Kc को यूं लिखते हैं, हमारे पास सॉरी HI स्क्वायर H2I2, ये होगा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे, अपनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में उन्हीं पावर्स पर रेज किए हुए जो हमने उनके बैलेंसिंग नंबर्स के लिए यूज किया। जब हम इसके लिए वैल्यूज यहाँ पे बाकायदा पुट करेंगे, जो कि वो प्रीवियसली कर चुका होगा, और फिर इसका एक न्यूमेरिकल आंसर निकालेंगे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर होगा। सो दैट्स व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन है, ठीक है? नोटिस करें कि वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आपको एक और एग्जांपल दे रहा है, ठीक है? सिल्वर इज मोर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जब हमारे पास इस तरह के रिएक्शंस होते हैं तो आयरन एक्चुअली प्रेसिपिटेट आउट कर सकता है सिल्वर को। इसमें रिएक्शन में आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस और सॉलिड है, ठीक है? हम जब भी केसी लिखेंगे हम सॉलिड को इग्नोर कर देंगे। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग बिफोर। मैंने एक पॉइंट पीछे बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि आप सॉलिड और लिक्विड्स को जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आते हैं उन्हें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर नहीं डालते, ठीक है? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजें जा सकती हैं, तो एक्वस सॉल्यूशंस जाएंगे। और चूंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हम प्रेशर में बता सकते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज जा सकती है। तो बेसिकली ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्वस वाले हैं, ठीक? तो यूं ही मेंशन कर दिया। अब इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसमें बाकायदा स्टेट सिंबल्स के साथ बड़े अच्छे डिटेल्ड मेथड से किया हुआ है। तो यस, दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट, ठीक है? I hope you understand that the state symbols, for the state symbols, the kind of brackets we use are parentheses, and for representing mole per decimeter cube concentration, the kind of brackets we use are known as square brackets. ठीक है? तो ब्रैकेट्स का डिफरेंस जरूर रखना है, जस्ट बिकॉज कि आपका दिल चाह रहा है कि आप इसको यूं कर दें कि एजी पॉजिटिव के आगे एक्वस को भी इस तरह से शो कर दें और इसे भी ऐसे शो कर दें, गलत हो जाएगा। If you cannot differentiate between brackets, you're not going to get marks for it. वहीं पे वो काटेंगे और इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि ये एक्सक्यूज करना कि हम जल्दी में थे इसलिए हमारी जो ना स्क्वायर ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस जैसी लग रही हैं या पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स जैसे लग रहे हैं, this is a lame excuse. This does not work. And actually you can't make excuses with them, ठीक है? So make sure no matter what kind of hurry or panic you are in the paper, you are still writing incorrectly. That actually comes with practice, ठीक है? The more past paper questions you're going to practice in a written way, the better you're going to get at it, ठीक? नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन, और ये बहुत इजी पोर्शन है। केसी के यूनिट्स क्या होंगे? इफ वी गोइंग टू फाइंड अप अ कांस्टेंट, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क विद इट्स यूनिट्स, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसकी यूनिट्स हम बताते हैं मोल पर डेसिमीटर क्यूब में, ठीक है? तो हमारे पास इसी के यूनिट्स को हम फर्दर लेकर चलते हैं। तो जितना भी ये आ रहा होगा आपके अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास ये मोल पर डेसिमीटर क्यूब का स्क्वायर होगा, ठीक है? ऐसे कर लें, वैसे कर लें। पीछे हमारे पास मोल पर डेसिमीटर क्यूब होंगे नाइट्रोजन के लिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लिटरली, और ये हमारे पास मोल पर डेसिमीटर क्यूब होंगे, ठीक है? और क्यूब के साथ हाइड्रोजन के लिए। अब सिंपली हमने यूनिट मेंशन कर देने होते हैं और हमारे पास वैसे उसी तरह से उसका आंसर आ जाता है। Now students keep on doing this thing in a proper practice. वो सारे मोल्स पर डेसिमीटर क्यूब्स लिखते हैं, वो उनकी वैल्यूज कट आउट करते हैं, ठीक है? Let me tell you, you do not need to do all of this.
जस्ट कीप इन माइंड कि आपके पास क्या आएगा, आपके पास पावर्स आएंगी प्रोडक्ट की ऊपर, रिएक्टेंट की नीचे। तो एक्चुअली ये नंबर सामने से देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पावर्स आती हैं तो ये डिवीजन में एक सब्ट्रैक्शन के रूल के तौर पे वर्क कर रही होती हैं। आप हो आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि जब बेसेस सेम होती हैं तो हमारे पास पावर्स जो ना मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रही होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। तो अगर ये सिंपल मैथमेटिक्स आप यहीं से इन्हीं नंबर से दिमागों में कर लें, तो आपको इस सारे को लिखने और कट आउट करने के एक हेक्टिक वर्क की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली सेव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम। नोटिस करें कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं। अगर 2 ऊपर होगा तो हमारे पास जो यहाँ पर 4 होगा वो कट आउट हो जाएगा इस तरह से कि आपके पास 1/2 रह जाएगा, यानी यहाँ पर पावर स्क्वायर हो रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर करना है और उसे ऊपर मूव कर देना है। क्या होगा, मोल की पावर आएगी -2 और डेसीमीटर क्यूब की पावर आएगी +6, राइट। ये आ जाएगी इनके यूनिट्स के तौर पे। इट्स प्रिटी इजी इफ यू नो हाउ टू वर्क देम, ठीक है। इस केस में आपके पास 3 है और 2 है, ऊपर 2 होगा नीचे 3 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर -1 आ जाएगा। वो -1 की तरतीब वैसी की वैसी, ठीक है। बच्चे ये पूरे पूरे यूनिट्स लिखते हैं, फिर इन्हें कैंसिल आउट करते हैं, फिर इस 1 को ऊपर लेकर जाते हैं, वो जो नेगेटिव की तरतीब पे जाना है वो उससे बेहतर है आप डायरेक्टली कर लें। जिस सिस्टम में दोनों तरफ बराबर है उसके सारे यूनिट्स कट आउट हो जाएंगे, किसी के कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट देयर आर 3 केसेस, ठीक है। जब आपके पास रिएक्टेंट साइड पर बड़ा नंबर और प्रोडक्ट साइड पर छोटा नंबर होता है, तो आपके पास मोल के यूनिट्स इनवर्स में और डेसीमीटर की यूनिट्स पॉजिटिव में आ जाते हैं। जब आपके पास रिएक्टेंट साइड पे छोटा नंबर और प्रोडक्ट साइड पे बड़ा नंबर होता है, तो उसी तरतीब से आपके पास मोल की यूनिट एक्चुअली पॉजिटिव में और डेसीमीटर की यूनिट नेगेटिव में आ रहे होते हैं इन थ्रीज। रिमेंबर मोल जब सिंगल स्टेप बढ़ता है तो डेसीमीटर क्यूब थ्रीज में बढ़ता है, वो ऑलरेडी क्यूब था, तो वो 3 6 9 की तरतीब पे चलेगा और ये 1 2 3 की तरतीब पे चलेगा। जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बराबर बराबर नंबर्स होते हैं तो आपके पास केसी में नो यूनिट्स फाइंड अप होते हैं, ठीक है। So that's what is going to happen. You do not need to do everything in the same way कि सारे मोल पर डेसीमीटर क्यूब्स लिखें जैसे ये बुक में लिखे हुए हैं, फिर सारे काटें और सारे आंसर निकालें। नो, यू कैन सिंपली वर्क आउट दीज नंबर्स आउट। आई होप मेरा मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। Am I clear? Yes, sir. तो वही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक की मिस्टेक है, इस पर मत जाइएगा। एक्चुअली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी के दोनों क्यूब्स में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ये एक्चुअली में ठीक नहीं है। द रेस्ट इज फाइन, ठीक। ये टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसने उसको सॉल्व भी कर दिया आपके लिए। तो नीचे कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को देख लें। बट रिमेंबर कि आपने जब भी कोई वर्किंग करनी है, ठीक है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये सारी कंडीशन, चूंकि केसी के एक्सप्रेशन में सिर्फ गैसेस और एक्वा सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो हम डिस्कशन भी सिर्फ उसी के लिए करेंगे। सॉलिड या लिक्विड को यहाँ पर एड अप मत कीजिएगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो केसी के एक्सप्रेशन में नहीं आते, तो ऑफ कोर्स केसी के यूनिट्स में भी नहीं आ सकते, ठीक। अब इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, but I think let's keep them for the next sitting. We we should wind it up over here. So before we wind it up, any questions? All right. If there are no questions, then I think that's it.